Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today in grade 1 class we will study the subject English text, and our book name is New Oxford Modern English. And today our unit is unit number 2, My Cat. First of all, we will do its reading, then I will explain you about unit. So open your book, unit My Cat. Okay student, you have opened your book. Let's start reading. I have a cat. Your unit name is My Cat. I have a cat. His name is Rish. His fur is white and he likes fish. He hunts and walks about my house. He always out to catch a mouse. I play with him and keep him clean. A smarter cat you have never seen. Okay student, now I will translate line by line for you. I have a cat. I have a cat. मेरे पास एक बिल्ली है. उसका his name is Rish. उसका नेम रिश है. His fur is white. उसके जो बाल हैं वो क्या हैं? वाइट हैं. And he likes fish. उसे मछलियाँ पसंद हैं. He hunts and walks. वो भागती है और शिकार करती है. About my house. मेरे घर के करीब. He is always out. वो हमेशा बाहर रहती है. To catch a mouse. चूहों को पकड़ने के लिए. I play with him. मैं उसके साथ खेलता हूँ. And keep him clean. और मैं उसे साफ रखता हूँ. A smarter cat. एक साफ सुथरी बिल्ली है. You have never seen. जो आपने कभी नहीं देखी होगी. ओके स्टूडेंट, ये एक पोएम जो है वो एक बच्चे ने अपनी कैट के बारे में लिखी है कि जो मेरी कैट है उसका नाम रिश है और उसके जो बाल हैं, ये देखिए, आपने देखा होगा कि कैट के ऊपर क्या होते हैं, वाइट कलर, उसके जो है वो मुख्तलिफ़ कलर के जो है वो बाल उसके होते हैं. लेकिन ये जो इसकी कैट है उसका नाम रिश है. इसके जो बाल हैं वो किस किस्म के हैं? वाइट कलर के हैं. और वो मछलियाँ बड़े शौक़ से खाती है और वो इधर उधर घूमती रहती है घर के बाहर. और क्या करती है? वो शिकार ढूंढती रहती है. और क्या पकड़ती है? चूहे जो है वो पकड़ती है, चूहों का शिकार करती है और उन्हें खाती है. और मैं अपनी जो है वो बिल्ली के साथ खेलता हूँ और हमेशा उसे जो है वो साफ़ सुथरा रखता हूँ. वो एक बहुत साफ़ सुथरी बिल्ली है, नीट एंड क्लीन, कोई दाग धब्बा नहीं है उसके ऊपर. बहुत फ्लफ़ी किस्म का वाइट कलर का उसका फ़र है, उसके बाल हैं जो आपने कभी नहीं देखी होगी. ये अपने वो कैट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. ओके स्टूडेंट, नाउ I will underline few words for you for dictation, and then I will write the difficult word English to English meaning on board. Okay student, I have wrote dictation word for you. White, hunt, walk, always, mouse, catch, smarter, never. Learn their spellings and for dictation. Now we will do the question answer. I have write the question answer for you on board. Our first question is Rish male or female? See your book. Is Rish male or female? In the poem you have seen that the word he and him is used for Rish. So Rish is male because for male we use he and him.
Second question, note down the question from the book and note down the answer from the board. Does Rish have hair or fur? What is it like? Rish have fur and it is white. So our third question is, what does Rish do in the house? Rish walks and hunts in the house. रिश क्या करता था? रिश घर में घूमता था और शिकार करता था. What do you think Rish does outside the house? Rish catch the mouse outside the house. वो घर के बाहर चूहों का शिकार करता था. Is Rish clever? Yes, Rish is clever. क्योंकि अगर वो clever नहीं होगा तो वो फिर शिकार कैसे करेगा? Now question number 6. In your own word, say what is Rish like? Rish have fine, beautiful fur and it is smarter cat. वो क्या उसके जिस्म पे क्या था? White, बहुत खूबसूरत जो है वो बाल थे और वो नीट एंड क्लीन थी और वो एक स्मार्टर कैट थी. I hope student you have wrote the question answer. Now we will do the exercise of remaining book. So open the book. We will do the exercise B. Okay student, now read these words. These are jumble words. Jumble words are those words their spellings are not in order. So you have to read the words carefully and you have to write the correct order of the word. For example, T-A-C. Now if you read it carefully, the word is C-A-T, cat. It is cat. Now second word, R-U-F. And if you correct their order, this is F-U-R, fur. S-H-I-F, Schiff. And if you read them if you solve them, it will be fish. F-I-S-H. U-S-H-O-E. It will be house. H-O-U-S-E. It will be house. And U-S-O-M-E. If you correct them, it will be mouse. M-O-U-S-E, mouse. Now student, the three words are remaining and you have to do them yourself. Now I will tell you the preposition. What is preposition? Preposition tell us about the noun. Where it is. Either it is ये हमें बताता है पोजीशन, नाउन की पोजीशन के बारे में कि नाउन कहाँ है. क्या वो किसी चीज़ के नीचे है, किसी चीज़ के ऊपर है और किसी चीज़ के दरमियान में है. यानी पोजीशन हमें डिस्क्राइब कर रहा होता है ये किसकी, नाउन के बारे में. तो दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. नाउ ये क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है? प्रीपोजिशन का क्वेश्चन इन पिक्चर से रिलेटेड है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट अनवर. अनवर इज डैश द लॉग. लॉग कहते हैं लकड़ी के टुकड़े को, ठीक है.
गोल लकड़ी का जो बड़ा सा टुकड़ा होता है उसको कहते हैं लॉग, जिसके ऊपर इंसान बैठ सकता है, जिससे हम मोस्टली हम झूले और इस तरह की कुर्सियाँ और बैठने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बेंचेस बनाते हैं। अनवर इज ऑन। अब आप देखें अनवर किस उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो आपने ये प्रपोजिशन यूज करनी है, अंडर, ऑन, डाउन, अप। अनवर इज ऑन द लॉग, so our correct preposition will be on. Now Anwar is climbing dash the tree. अब जब ऊपर जाने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, up, going up, he's going up. Anwar is climbing up the tree. Now our next preposition, the leaf is falling. अब लीव आप देखें पत्ता किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप कौन से प्रपोजिशन यूज करेंगे, डाउन। द लीव इज फॉलिंग डाउन। द आंट इज डैश द लीव। अब आप यहां देखें कि गौर से देखें, लीव ऊपर है और आंट क्या है, नीचे है। तो ये जब हम किसी चीज़ के नीचे होते हैं, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे होती है, तो हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं अंडर की। द आंट इज अंडर द लीव। नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। नाउ यू हैव टू, दिस इज योर फोनेटिक, कि आपको SH का साउंड क्या आता है, च, च का साउंड देता है। SH किसका साउंड देता है, श। TH किसका साउंड देता है, द। एंड TH किसका साउंड देता है, अगेन द। थ की और द की। अब आप यहां पे देखें, चिप, चिम, चॉप, चैप, शिप, शिन, शॉप, शॉर्ट। ठीक, अब ये देखिए, ये दे रहा है थ की साउंड, थिक, थिन, विथ, क्लॉथ। और ये आपके पास दे रहा है TH, द की साउंड, दिस, दैट, द, दीज। दिस इज योर लिसनिंग एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। On page number 12, you have one activity. Look the picture carefully and write the one sentence. What they are carrying. इस पिक्चर के अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ जो है वो 6-7 बच्चे यहाँ बने हुए हैं, ठीक है, और इनमें से हर एक के पास कोई ना कोई एनिमल मौजूद है। तो आपने क्या करना है कि इन 6 के 6 बच्चों के बारे में आपने लिखना है कि इनके पास कौन कौन सा एनिमल मौजूद है। आई होप you have understand the lecture or you have understand the unit, and now I am writing few word. डिक्टेशन वर्ड से ही आपने अपने डिक्टेशन वर्ड्स को ही आपने सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना है। आई होप स्टूडेंट कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।